Hey guys, good morning. So मस्त नींद आई रात को. अब अपना बढ़िया मस्त नाश्ता भी आ गया है. ब्रेड ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट, प्लेन ऑमलेट, then पनीर पराठा, मक्खन, fresh watermelon juice and some tea. Like a dragonfly, just grab my hand from him, send with me tonight. I run away. Good morning. Today is day 2 of our journey. It's 9 a.m. now and our breakfast is here. Yummy, delicious breakfast. So we'll have our breakfast and head for the onward journey to Lucknow and then Raebareli. गाड़ी नीचे चलते हैं, बिल पे करते हैं. Pixie, let's go. Pixie, why you are shouting? Pixie, no. चलो तुम इसको पॉटी करा के आओ, तब मैं चेकआउट करती हूँ. बाय पिक्सी. पिक्सी रेडी टू गो. We'll never forget the past, but what counts is our. अरे वाह, गाड़ी में फूलों की बरसात. Or I get scared. Just come take this risk now. We'll be prepared. So guys, we have Mr. Samir Luthra, Director of Operations in Lee Meridian, Nagpur. So he is going to brief us about the cleanliness in the hotel. Hello everyone. See, Meridian is a Marriott property and Marriott has an initiative which is called a Commitment to Clean. So Commitment to Clean is a globally introduced initiative where all the Marriott hotels have been following this Commitment to Clean process, where we are taking the hygiene, sanitations and the safety of the guests and associates to the next level. So it starts from the valet where the valet goes to pick up the guests from the airport, and in the back area it starts from the associates. So we have introduced various initiatives in this Commitment to Clean process, like sanitizations of luggage. When the guest enters, we take their and check their Arogya Setu app. We take their temperatures. We have a mobile check-in at the reception counter. Then we have the room sanitization and the room cleanliness process, which we follow, where the housekeeping associates specifically spends more than an hour in every room, where he cleans each and every aspect of the room properly. And there are 10 checkpoints which he checks, and he makes sure that at least those 10 checkpoints are thoroughly sanitized, and obviously the room is also sanitized. So these are all the processes which we are following. Even I hope you had a nice stay with us at our hotel, and hope to see you back soon. Thank you. Thank you, sir. There must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand. निकलते निकलते 10:10 हो गया है और हम लोग अभी ली मेरिडियन से जस्ट बाहर निकले हैं. तो अब यहाँ से हम लोग अपना वही एज प्रॉमिस्ड, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से कमेंट्स किए, वोट किए, एंड वी गॉट द वोट फॉर नागपुर छिंदवाड़ा सियोनी हाईवे टुवर्ड्स नरसिंहपुर टू सागर, झांसी एंड लखनऊ. बहुत लंबा दिन होने वाला है आज, लेकिन आज मैं फ्रेश हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छी नींद मारी है. तो आई एम फ्रेश टुडे. सो लेट्स रॉक इट. Find our place in this world. So अभी हम लोग NH47 पे हैं टुवर्ड्स बैतूल भोपाल, और उसके रास्ते से ही राइट लेंगे छिंदवाड़ा के लिए. ये रहा हमारा बोर्ड, छिंदवाड़ा लेफ्ट लेके छिंदवाड़ा वाला. मयंक मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त के लिए था. हमारा एक दोस्त है मयंक, वो भोपाल में रहता है.
उसने हमको वादा किया है कि आप जब आएंगे भोपाल तो हम आपको कड़कनाथ खिलाएंगे, वो भी जंगली वाला। तो कड़कनाथ अगर आपको नहीं मालूम तो एक मुर्गा होता है काले कलर का, जिसका खून भी काला होता है और फ्लैश भी काला होता है, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। सो जितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं दे कैन ट्राई, लेकिन गर्म बहुत होता है, थोड़ा ही खाना, ज़्यादा नहीं दूसरे दिन पेट पकड़ के बैठ जाओगे। कितने का टोले? Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. The secret's there, everywhere. Just you and I. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का बॉर्डर आगे आने वाला है। तो यहाँ से छिंदवाड़ा का जंगल स्टार्ट हो जाएगा, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ही सीनिक है। मुझे तो आदिलाबाद वाला बहुत सीनिक लगता है। क्या कल तो बाप रे बाप हालत खराब हो गई थी मेरी। कौन सा गांव है? ये सौसार है। और सौसार। अगर आप लोग बहुत सुबह सुबह नागपुर से निकले और ब्रेकफास्ट करना हो आपको तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सौसार में बहुत बढ़िया डिलीशियस पोहे मिलते हैं, कांदा पोहा हो गया, जो भी पोहा हो गया, मतलब बहुत अच्छे। लास्ट टाइम हम लोग ने खाया था, बहुत टेस्टी लगा था। तो ओवरऑल रोड बहुत ही अच्छी है। बहुत छोटे छोटे कहीं पर एक दो गड्ढे हैं या छोटा सा है पैच, बट दैट इज़ फाइन बिकॉज रोड इतनी चौड़ी है कि आराम से यू कैन मैन्यूवर लेफ्ट एंड राइट। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा ही गड्ढे वड्ढे हैं, तो लेफ्ट राइट आधा किलोमीटर हुआ, लेकिन फिर भी ओके गाइन। ये देखिए ट्रक वाला भी दाएं बाएं ये तो है थोड़ा सा। कन्हन रिवर ब्रिज, ये कौन सा गांव है? रामकोना। एक और, वाह भाई वाह, ये आया ना पैच। ट्रक इस तरफ है, धीरे से जाओ, तेज तो ठीक है ना, दबा देता तो। ये आज से नहीं है वैसे, जानते बताएं, ये वाला मुझे याद है। यहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है फ्रॉम 2016 या 17, मतलब आधा पड़ा हुआ है, कभी मतलब मैंने देखा नहीं बनते हुए। और यहाँ से कभी वो पानी बहता है, आगे शायद पानी बह रहा होगा। तो ये है ना, वो देखो, हाँ, तो ये कोई नदी का वो है। कार्य प्रगति पर पिछले 3-4 साल से है। ये देखो क्या मस्त है। वहाँ पर गाड़ी हम उतार सकते हैं और पानी में कानन, क्या था, कानन रिवर, राइट? कानन तो पहला वाला था ना, ये वही उसी का स्ट्रेच है आगे जाके। पानी ओवरफ्लो करता होगा इस रास्ते के ऊपर। हाँ, पानी ओवरफ्लो करता है तो ये बंद हो जाता है वही बारिश के टाइम में। तो ये रामाकोना वाले विलेज के जस्ट आगे है। कितना, पूरा दर्जन दे दिया? हाँ, पूरा दर्जन ले लो, 50 का जितना भी है। पिक्सी खाएगी हमारी। थैंक यू। Pixie banana for you. Pixie yummy banana. अरे बनाना तुम्हारा फेवरेट। ओ पिक्सी, बनाना नहीं खाओगी? अच्छा मैं यहीं पे रख दे रही हूँ, तुमको जब खाना होगा खा लेना। आई थिंक उसका चिकन ही अभी तक डाइजेस्ट हो रहा है। 2, 4. क्या करने जा रही है ये? ओह माय गॉड। क्या मस्त शीशा साफ कर दिया भाई, पूरा साफ।
हाँ, तो हम लोग का GoPro में कुछ तो SD एरर आ गया है, तो अभी हम लोग उसको डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं मोबाइल में और फिर उसको फॉर्मेट कर देंगे एक बार। तो अभी हम लोग कैमरे से इस रोड की वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं, तो अगर शेकी आएगा तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। हिली टेरेन से होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल व्यूज़। तो पल्लवी मैडम यहाँ से कूदी और इसके अंदर इनका अंगूठा फंस गया। देखो आगे आ गया मेरा। और क्या हुआ मैडम, क्या हुआ आपके साथ? ये क्या हुआ? कुछ फीडबैक? कुछ नहीं, ये तो छोटी छोटी, क्या लंबे रास्तों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ, तो इनका अंगूठे के बगल वाली उंगली छिल गई हल्की सी, खून तो ज़्यादा निकला है। चलो देखते हैं घर पहुंच के क्या हालत है। इंजेक्शन तो लगेगा। नहीं, क्यों लगेगा इंजेक्शन? जय श्री हनुमान। तो अभी इस समय हम लोग छिंदवाड़ा बाईपास से जा रहे हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा पीछे भी सडन गड्ढे एकदम से आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही है। तो छोटी गाड़ी तो नहीं जाएगी यहाँ से, छोटी गाड़ी निकलना मुश्किल हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा गड्ढा था, पानी नहीं बरसेगा तो ये छोटी गाड़ी निकलना ऐसा मुश्किल है। ये रोड ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। भैया आना मत जब तक आपके पास बड़े टायर वाली गाड़ी ना हो। ये देखो हमारी भी लड़ गई। बैक करो, बैक करो, ओह गॉड, बैक करो, बैक करो, घिस गई हमारी भी। बैक करो, जा पाएगी? बैक करो। देखना फंस जाएगी। जाओ 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 जाओ। एक्सयूवी लड़ गई तो जब एक्सयूवी घिस गई नीचे, आगे पीछे करना पड़ा, कुछ तो कर 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 हुआ। शिट। अब गाड़ी दिखानी पड़ेगी जाके। This is a bad patch। ये देखिए ये कट के आ रहा है रास्ता, ये शायद छिंदवाड़ा के अंदर से आ रहा है। घिसी तो अच्छे से है, अब क्या घिसा है समझ में नहीं आ रहा। ऑल गुड। हाँ ऑल गुड। छिंदवाड़ा बाईपास बहुत ही खराब है। बीच में दो दो ऐसे गड्ढे मिले कि उस पे स्मॉल अगर कोई किसी का हैचबैक है तो वो तो कभी नहीं निकल पाई। हम लोग की एक्सयूवी है तो फिर भी एक जगह पे तो पूरा लग गई थी। तो मेक श्योर यू गो इनसाइड छिंदवाड़ा सिटी होके, नॉट द बाईपास, बिकॉज इट्स वेरी बैड। करेक्ट। और इट्स नॉट छिंदवाड़ा, इट्स छिंदवाड़ा। हिंदी इसकी थोड़ी कमजोर है। No, it's fine. Please excuse me if I'm saying anything wrong or my pronunciation is not correct. Because why?
Because why? Because I am a Assamese girl, so my accent is like that. बाईपास जो NH 547 है, जो बाईपास है चिंदवारा करके जा रहा है, उसको अवॉइड कीजिएगा. आप सिटी के अंदर जाइए, आगे जाके आपको यही वाला हाईवे फिर से मिल जाएगा सियोनी के लिए. ऊपर से हाईवे 347 दैट कनेक्ट्स सियोनी राइट हैंड साइड में. ओ बाप रे, यहाँ भी एक गड्ढा है भाई साहब. उस तरफ से जाएं क्या? उधर से ही निकलते हैं. आराम आराम से निकलना, एकदम धीरे धीरे. धीरे 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 धीरे. ये चौथा गड्ढा है ना. एक तो हाँ. हमारा गोप्रो ले नहीं पाया, गलती से शायद रिकॉर्ड दबा नहीं. हम लोग को एक्चुअली रिंग रोड पकड़ना चाहिए था, उस सिटी के अंदर ना जाके भी उस तरफ से हम लोग ने राइट ले लिया. ठीक है, अगर लेफ्ट जाते तो वो रिंग रोड था, तो उसको पकड़ते तो आगे फिर मिल जाता. तो वही है ना जो छिंदवाड़ा के अंदर से जा रहा नहीं, है. छिंदवाड़ा के अंदर से अलग रोड जा रही है और एक रिंग रोड भी है साइड से जो जा रही थी. वो कहाँ कनेक्ट होती? वो भी आगे जाके इसी हाईवे पे ही कनेक्ट हो जाएगी. गाइस, सो देखिए, ये जो रोड लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है वो छिंदवाड़ा सिटी से आ रही है. आगे वाली जो स्ट्रेट रोड है वो रिंग रोड है. और हम लोग अभी जाना है राइट हैंड साइड में, विच विल गो टू सागर एंड झांसी. झांसी, सागर एंड झांसी, झांसी नहीं. ओके, सो दिस विल कनेक्ट टू नरसिंहपुर, राजमार्ग चौराहा, सागर और झांसी. सो हाईवे नंबर 547 कंटिन्यूस. मतलब एक तो छिंदवाड़ा के बीच से, एक छिंदवाड़ा के लेफ्ट साइड से रिंग रोड और हाँ. राइट साइड से यही वाला हाईवे जिसमें हम लोग आए 547. हैं. Yes. ये तीनों एक जगह आके कनेक्ट होता है, तो ये वो चौराहा है. So now you suggest either you come from ring road or inside the छिंदवाड़ा. अभी थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए. दोपहर के 2:18. हम लोग ने लंच तो किया नहीं है, तो ये हम लोग ने हॉट चिप्स से बनाना चिप्स, ये आलू चिप्स रख लिया था, तो इसी को ही अभी सेवन करते हैं. चलिए. छिंदवाड़ा से निकल के भी द बैड रोड कंटिन्यूस. गड्ढे ही है हर जगह, हर थोड़ी थोड़ी दूर में बड़े बड़े गड्ढे हैं. तो हमको लगा कि रोड अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ख़राब रोड्स मिल रहे हैं. तो लेट्स सी आगे कैसा होता है. सी दिस गाइस, पूरा रेड दिखा रहा है आगे, और रोड्स भी बहुत ख़राब है. ये पूरा स्ट्रेच रेड दिखा रहा है, पता नहीं आगे क्या है. शायद रोड ख़राब होने के कारण दिखा रहा होगा, बट आपको आगे दिखाते हैं. लोग क्या तोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं, इन्होंने तोड़ तोड़ के बनाया है. इतना खराब हो ही नहीं सकता. अभी पिछले साल हम गए हैं. अमरवाड़ा थाना चौकी सिंगोड़ी ये जगह है. बहुत सब्सक्राइबर्स ने हम लोग को ये वाला रूट बोला था कि एक्सप्लोर कीजिए, सो दे वांटेड टू नो. सो जिन्होंने भी पूछा था, मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको लखनऊ या फिर आगे कहीं भी जाना हो तो बेटर टेक सियोनी जबलपुर रूट. यहाँ आई वुड नॉट रिकमेंड. व्हाट यू से? हाँ वही है. सियोनी से, मतलब नागपुर से सियोनी जाके रास्ते में अगर देयर इज अ डिवर्जन, थोड़ा सा लेके वापस उसी रोड पे आ जाओ. दैट रोड इज़ ऑसम. मतलब छिंदवाड़ा वाली रोड पिछले साल तक मुझे मालूम है बहुत अच्छी थी. इस रोड से मैं गया हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझ के तोड़ी गई है किसी कारण, या ये ऐसा क्षेत्र है कि दे वांट ट्रक्स टू बी गोइंग स्लो और व्हाट एवर बी द रीज़न, आई डोंट नो. हाँ, कि लास्ट दिवाली में हम लोग इसी रूट से गए थे. ये बहुत अच्छी रोड. हाँ, बहुत अच्छी थी. अच्छा, यही वाली वो थी क्या जिसमें दिखा रहा था पानी ऊपर से बह रही थी? हाँ, हो सकता है. नाइस व्यू. गाड़ी वाड़ी धो रहे हैं अपने.
मछली पकड़ रहे हैं। हम भी अपनी फिशिंग रॉड लाए हैं। तो ये मान के चलिए कि 100 किलोमीटर के करीब आपको ऐसे ख़राब रोड्स मिलेंगे छिंदवाड़ा के आसपास। हाँ, छिंदवाड़ा के आसपास 100 किलोमीटर्स का वो स्ट्रेच होगा जहाँ पे आपको बहुत ही ख़राब रोड्स मिलेंगे। बहुत मतलब कि बीच बीच में ख़राब रोड्स। छिंदवाड़ा का बाईपास और उससे आगे तक नरसिंहपुर वाली रोड पे जहाँ तक घाट है, अभी हम लोगों ने घाट क्रॉस किया है, घाट तक बहुत ही गंदी रोड है। मतलब हम लोग 11 बजे नागपुर से चले थे, इस समय 3 बज रहा है और 4 घंटे हो गए और अभी हम बस छिंदवाड़ा छोड़ के आगे निकले हैं नागपुर के रास्ते। नागपुर अभी भी 90 किलोमीटर, सॉरी नागपुर कह रहे हैं, नरसिंहपुर अभी भी 90 किलोमीटर है। हम अमरवाड़ा में हैं और कहीं हाईवे पे, और बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब थी पूरी। अभी हम लोग पहुँचे हैं कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का स्ट्रेच मार के। तो चलिए देखते हैं आगे कितना आगे और चलते हैं। तो फिर से एक बार बोलेंगे, छिंदवाड़ा के 3 रास्ते हैं। बाईपास राइट साइड से जो है 547 बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 2 से 3 घंटा ले लिया और गाड़ी भी बोल गई। 3 जगह तो बहुत तगड़े गड्ढे थे। और उसके अलावा छिंदवाड़ा के अंदर से अब पता नहीं कैसा हो रूट, लेकिन अगर आप तीनों रूट से भी आते हैं फिर भी आपको अमरवाड़ा तक बहुत ज़्यादा गंदी रोड मिलने वाली है। कैमरा का बैटरी रेड दिखा रहा है तो चार्जिंग का टाइम आ गया है। तो ये देखिए बेल्किन का है चार्जिंग। आप अगर इस पे आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, तो 12 वोल्ट का कुछ भी चार्ज कर सकते हो। तो लेट्स कनेक्ट। इसमें देखिए 3 पिन भी है और USB कनेक्ट भी है। दिस इज अ नेसेसरी टूल if you are traveling, you do blogging, or if you are working also you need this. लैपटॉप चार्ज करने के लिए भी बहुत अच्छी है। इतना सुंदर व्यू है, देखिए। इतना तगड़ा झटका लगा है, सही है सब। सडन झटका। कितना अच्छा लग रहा है। आगे अभी एकदम ऑसम रोड है, ऑसम। Like a dragonfly, just grab my hand from heaven's send with me tonight. I run away. टोल देने के बाद फिर से वैसी रोड। मतलब सुबह 11 बजे से लेकर इस समय 5 बजने वाला 15 मिनट में 6 घंटा इस रोड ने खा लिया और मैं मात्र चला हूँ 253 किलोमीटर। सी अनदर वन। इस तरह के सडन आ रहे हैं, खाट। हो सकता है जाके मेरा टायर चेंज कराना पड़ेगा या फिर पूरा रिम जाने वाला है। 7 किलोमीटर पहले है। 7 किलोमीटर में 7 जन्म निकलवा देंगे ये लोग। भैया राजमार्ग आ गया, राजमार्ग 44। आफ्टर 10 बजे चले थे, एग्जैक्ट 5 बज रहा है। अगर 11 बजे से लें और 5-6 घंटा में 262 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया मैंने
ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से। तो छिंदवाड़ा इज ऑलवेज अ नो गोइंग फॉरवर्ड। जब तक बन नहीं जाता भाई लोग निकलना मत। ये रोड बहुत अच्छी थी, पिछले साल में आया था दिवाली में, बहुत अच्छी रोड थी। ये खराब कर दी गई है या फिर आगे सियोनी का जो रूट बन रहा है तो सारे ट्रक्स इधर से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने या तो पूरा रास्ता खराब कर दिया है। बहुत ही सुंदर रोड को बहुत ही बेकार कर दिया। एंड हियर वी टच द NH44 राजमार्ग 44। अब देखते हैं 5 बजा है एग्जैक्ट, कितनी देर में हम पहुंचते हैं यहाँ से लखनऊ। सागर हम लोग अभी पहुंच गए हैं, 6:30 बज रहे हैं शाम के। तो हम लोग हैं झांसी से पहले वाले होटल पे, टोल पे। गाइस अगर आप लोग नागपुर से झांसी की तरफ आ रहे हैं और लखनऊ कानपुर जा रहे हैं तो एक जगह मैप आपको कंफ्यूज करेगा, वो उतार के शायद सिटी के अंदर से लेके जाएगा, राइट। वहाँ पर मत जाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाइए। थोड़ा सा वो लंबा दिखाएगा लेकिन क्योंकि सिटी के अंदर वो पूरा रोड बन रही है, बहुत ही ख़राब है। तब ये देखिए हाईवे मिल गया मेरे को, यहाँ से लेफ़्ट राइट। तो लेफ़्ट आ रहा है शिवपुरी से, राइट जा रहा है झांसी। तो इसी पे ये मेन है। तो आप अगर NH44 पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल डेड एंड तक जाइए, लास्ट 27 डेड एंड तक, और आपको NH27 मिल जाएगा जो आ रहा है शिवपुरी से झांसी की तरफ होते हुए उरई, कानपुर और लखनऊ। गाइस 11 बज चुके हैं, अभी हम लोग पूरे पहुंचने वाले हैं। तो कानपुर के लिए तो अभी 140 किलोमीटर बचा है और सोच रहे हैं कि कानपुर में बढ़िया ढाबे में खाना खाएंगे। हमारे फ्रेंड ने सजेस्ट किया है दीपू चौहान ढाबा, बहुत अमेजिंग फूड है वहाँ का, तो वहीं जाएंगे अभी। फ्रेश? आई एम परफेक्टली फ्रेश। पूरा लाल बड़ा हुआ, देखो कितना आगे था। तुम बस वो डिपर देते रहो। ये 5 मिनट का यहाँ पे जाना, जो वहां से गाड़ियाँ खड़ी है। तो मेरे हिसाब से सबको बता दो कि कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबा लेफ्ट साइड पे जाम रहता है इस रोड पे। ये हम लोग उरई से कानपुर के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ तो बन रहा है और आज पिछले साल भी था, तो बेटर है आप रॉन्ग साइड से आइए, थोड़ा स्लो डिपर डाल के, और फिर एक जगह आएगा जहाँ पर आपको ट्रकों के आगे आ जाइए और उसके बाद निकल लीजिए। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये सिंगल, मैं रॉन्ग साइड से आया, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर चला के, और उसके बाद मैं ट्रकों के आगे आया कि ट्रकों ने तो बिल्कुल रास्ते में रोक लिया है, वहीं पर बैठे हुए हैं सोच के कि अब आगे बढ़ना ही नहीं है। तो आप ना फंस जाओ, इसलिए टेक अ रॉन्ग टर्न। और ये एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कहाँ पर है। जो जगह देखो कहाँ पर है, ये कल्पी पे है। कल्पी पे, हाँ कल्पी पे। आप हमेशा जस्ट टेक अ रॉन्ग साइड। होपफुली ये बन जाएगा फ्लाईओवर, कब बनेगा पता नहीं। हम लोग हैं दीपू चौहान ढाबे पे। इट्स अर्ली मॉर्निंग 1। हम लोग का खाना आ गया। Try to find a place in this world. बहुत टेस्टी। पेट पूजा हो गई है, मिक्सी ने भी खा लिया है। वहाँ से और कितनी दूर है? बस यहाँ से 2 घंटा और। Standing on the edge of a cliff, realize there must be more. ये है गंगा जी, आ गए हैं। गंगा जी ब्रिज यहाँ पे स्टार्ट
फाइनली लखनऊ 76 किलोमीटर। पहुंचो भैया, घर सोया जाए। Tonight I run away. तो ये लीजिए, लखनऊ पहुंच चुके हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन। भी जाके 4:30 हुआ है और हम लोग अभी लखनऊ एंटर कर रहे हैं। तो इट वाज अ हेक्टिक जर्नी, लॉन्ग जर्नी, हेक्टिक जर्नी, बट इट वाज गुड, राइट? Yes, it was good, and I hope it will help you all to plan your drive towards north to Lucknow from Bangalore before Diwali. But this route is not good. Yeah, this is a long route, and Chindwara area roads are pathetic. So please try to avoid. If you are coming to Lucknow, please take the Prayagraj route, or else if you have you have to come to Jhansi or Sagar, then take Sioni, and then from Sioni you come there, right? Yes, because of the due to the construction, all the trucks are routed through Chindwara, and that's what has created a lot of issues. Because it was rains, and with heavy traffic movement, the roads have gone bad, and that is what I understand. So not a good road anymore for driving, so better avoid it. So चलिए, हम लोग अभी घर पहुंचते हैं। मुँह हाथ धो के सोएंगे, बहुत थके हुए हैं, तो सोएंगे और फिर ऑफिस, सुबह उठ के ऑफिस करना है। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं। कहाँ होगा पता नहीं, डेस्टिनेशन यहीं आसपास नॉर्थ में कहीं पे होगा ज़रूर। तो ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड ड्राइव सेफ। Bye bye. बाय बाय।